So, young students, so this is lecture 2 of our ST2 solution. So, in the previous lecture, we have covered section A. So, these were the 5 questions: 4x1 multiplexer using 2x1, 3-bit binary to gray converter, 1x2 demultiplexer using logic gates, and then what is the difference between flip-flops and latches. And the last question was combination and sequential, difference between combination and sequential circuits. Now we will start with the section B of the ST2. Okay. So design an octal to binary encoder using basic logic gates. So octal number system we have covered in unit 1. So these are the systems which are defined by base. Base means the number of symbols offered. जैसे बचपन से हम क्या यूज करते आ रहे हैं नंबर सिस्टम डेसिमल. डेसिमल इज the number system with base 10. Deci means 10. So 10 base means 0 to 9 symbols are there. So in octal, how many symbols will be there? Base will be 8 and the symbols will be 0 to 7. And similarly, binary, base will be 2 and symbols are only 0 and 1. So this is the basic of the number system. Now we can start with the encoder circuit. So to prepare the encoder circuit, we have to first design the truth table for this. So let's design the truth table. Octal is the input. So there can be 8 inputs. So let's name them as O7, O6, O5, O4, O3, O2, O1 and O0. And there can be 3 outputs, B2, B1 and B0. Why there are 3 outputs? So if we recall from unit 1 that when we convert an octal digit into binary, it requires 3 bits, okay, because the highest number is 7. 7 when represented in binary, it is represented as 111. So minimum 3 bits are required to represent the highest octal number. So that's why these 8 octal bits or digits, when it will be converted into binary, the binary output can be in maximum 3 bits. So there are 8 inputs and 3 outputs. So we can start from the first case. Initially, let's say I want to convert octal 0. So I will be making this O0 1. This O0 will be 1. So this O0 will be 1 and rest all will be 0. So if I apply O0 is equal to 1, that means I want to convert 0 into binary. So it will be 0, 0, 0. Similarly, if I want to convert O1, that means I want to know the octal binary of 1. Okay. Then I will get 0, 0, 1. Similarly, if I want to know the octal of 2, it will be 0, 1, 0. Similarly, for 3, it will be 0, 1, 1. Similarly, for 4, it will be 1, 0, 0. Then for 5, it will be 1, 0, 1. Then for 6, it will be 1, 1, 0. And last case, O7. So for this, all are 0. In actual, I have placed a line here because all inputs are 0. But in the exam mode, आपको सभी zeros डालनी है, आप ये lines मत डालिएगा. Okay. So for this last case, the output will be 1, 1, 1 for O7. So this is the truth table, and we have to keep in mind that the truth tables of encoder are different from rest of the truth tables which we are covering in the complete subject. कैसे different है ये truth table? Because हमें पता है कि जब you can check here, if this was the truth table, for one input 2 cases were there. Okay. Similarly, for 2 inputs there will be 4 cases. For 3 inputs there will be 8 cases. But here, if you see that there are 8 inputs, so actually there can be 2 raised to power 8. That means 256 cases in the truth table. But we are not interested in 256 cases. We are only interested in those cases जहां एक टाइम पे केवल एक इनपुट हाई है जिसको हम बाइनरी में एनकोड करवाना चाह रहे हैं. ओके. सो दिस इज द ट्रुथ टेबल, बट दिस इज नॉट द कन्वेंशनल ट्रुथ टेबल. ये इसका ध्यान रखना होगा हमें एनकोडर के केस में सिर्फ, बाकी सब जगह ट्रुथ टेबल्स हमारी नॉर्मल रहेंगी.
ओके। सो ऐसे केस में हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? नॉर्मल ट्रूथ टेबल में तो ट्रूथ टेबल आते हैं, हम देख लेते हैं कि मिन टर्म्स क्या है, मिन टर्म्स नोट करके के मैप में डाल देते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ बहुत इजीली लिखा जा सकता है। हमें सिर्फ B2, B1, B0, जो ये B2 है, B2 के लिए अगर हम चेक करें कि B2 1 किस किस की वजह से आया है, तो वी कैन चेक दैट B2 के 1 आने की वजह क्या है? O4, O5, O6 and O7. So these are the 4 ones in B2 जो O4, O5, O6 या O7 की वजह से है। दैट मीन्स B2 1 लाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, या तो O4 से कर लें, या O5 से, या O6 से, या O7 से। When we are saying this or this or this or this, that means simply OR gate expression can be written that B2 can be O4, or this plus is indicating the OR operation, logical OR gate. Okay, so O4, O5, O6 and O7. Similarly, you can prepare for B1. B1 is having 1 at these 4 places, so this one corresponds to O2 and this one corresponds to 3 and this one 6 and this last one 7. So this can be O2 plus O3 plus O6 plus O7. Similarly, you can write for B0. So this one is corresponding to this O1. Okay, so this is O1 and this is corresponding to this O3. Similarly, this one is corresponding to O5 and the last one, this one is corresponding to O7. Okay, so these are the 3 expressions which are obtained for the 3 outputs of octal to binary encoder. Now we can design a circuit for the same. So O7, O6, O5, O4, O3, O2, O1 and O0. These are my 8 inputs, and for making the circuit 4, 5, 6, 7. So this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7. Using an OR gate, so this becomes B2. Similarly for B1, 2, 3, 6, 7. So this is O2, this is 3, this is 6 and this is 7. So 2, 3, 6 and 7. This will become B1. And the last one B0, 1, 3, 5, 7. So this is 1 and this is 3, then 5 and this is 7. So all these 4 will make B0. So this is the octal to binary encoder using basic logic gates. Okay, so this is the first question from section B. Now let's proceed to the another question from section B, which is your full subtractor using 1x8 demux. Okay, so full subtractor, for this you have to prepare the truth table for full subtractor first and then implement that truth table using the demultiplexer. But we have to be very much aware that demultiplexers cannot be used to design circuits, but decoders can be used to design circuits. So this demultiplexer can easily be converted into a decoder. So we have to be aware of 2 concepts, full subtractor and demultiplexer. So first we can draw a 1:8 demultiplexer. अभी demultiplexer section A में हमने देखा था 1x2 demultiplexer का सर्किट बनाया था, तब हमने देखा that there are multiple outputs. उन मल्टीपल आउटपुट्स में से कोई एक आउटपुट सेलेक्ट होता है, कौन सेलेक्ट करता है? सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करती है, और जो सेलेक्ट होता है वहां पर हमारा इनपुट चला जाता है. ओके, सो दिस 1x8 demux आप पहले बना ले. सो दिस इज योर 1x8 demux जिसमें एक इनपुट है आपके पास I एंड 8 आउटपुट्स आर देयर. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this is 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
So this corresponding to this 8 can be written as 2 raised to power 3. So there will be 3 select lines. Okay. So this is 1 cross 8 demux. But मैंने अभी आपको बताया कि demultiplexers are not directly used for realizing the circuits. But a demultiplexer can easily be converted into a decoder. कैसे? Simply if you make this I is equal to 1. अगर आप I को permanently 1 कर दें, दैट मीन्स हम जो बात कर रहे हैं कि सेलेक्ट लाइंस एक आउटपुट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्टेड आउटपुट पे आई चला जाएगा, तो वी आर सिंपली सेइंग दैट आई नहीं 1 चला जाएगा. ये डिकोडर करते हैं. ओके तो डिकोडर करते हैं, तो हमने डीमल्टीप्लेक्सर को डिकोडर में कन्वर्ट करना है, तो आई इज इक्वल टू 1 कर दिया. नाउ दिस डीमल्टीप्लेक्सर विल एक्ट लाइक ए डिकोडर जिसमें आई का अब कोई रोल नहीं रहा. दीज आर द 3 इनपुट्स विच आर डिसाइडिंग विच आउटपुट विल बी गिवन वन हाई आउटपुट. ओके so ultimately this is acting, this 1 cross 8 demultiplexer is actually acting like a 3 cross 8 decoder. Why 3? Because these 3 are these select lines. Okay, these select lines are actually called inputs in a decoder. तो अब फुल सबट्रैक्टर हमें पता होना चाहिए. ये तो बेसिक है कि ये डीमल्टीप्लेक्सर से बनाना है, बट बनाना क्या है? फुल सबट्रैक्टर. सो फुल सबट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल देखते हैं. ए बी सी, लेट्स से दीज आर द नंबर्स जिनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है. डिफरेंस आ जाएगा आपके पास और बोरो आ जाएगा. सो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. So ultimately what we are going to do, we will be subtracting a minus b minus c. Okay, or we can say we are doing this. Okay, so this will be the difference. So we can simply prepare the truth table. फटाफट से कर लेते हैं. फुल सबट्रैक्टर हमें वैसे भी ऑलरेडी आता है, डीमल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करना है, कैसे करना है. सो दिस 0 माइनस 0, डिफरेंस विल बी 0, बोरो विल बी 0 एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस. हम ये कर रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे. a माइनस b प्लस c. सो दिस 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 विल बी डिफरेंस 1, बोरो 1. ओके, ये हाफ सबट्रैक्टर में हमने कवर कर लिया था कि 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1 होता है. एंड देन अगेन दिस केस इज ऑल्सो द सेम, 0 माइनस 1, तो अगेन डिफरेंस विल बी 1, बोरो विल बी 1. नेक्स्ट 0 माइनस 2, जब भी कभी स्मॉलर में से ग्रेटर सबट्रैक्ट होगा तो ये तो क्लियर है कि बोरो तो आना ही है. सो 0 माइनस 1 सबट्रैक्ट हो रहा तो भी बोरो आ रहा था. नाउ 0 माइनस 2 सबट्रैक्ट हो रहा है तो बोरो तो अभी भी आएगा. सो दिस इज अगेन बोरो, बट 0 माइनस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप देखेंगे तो डिफरेंस विल बी 0. इसको कैसे किया है मैंने? तो 0 में से 2 सबट्रैक्ट नहीं होता तो मैंने क्या किया? 1 बोरो लिया. तो 1 बोरो लिया तो ये 1 क्या बन गया? ये 0 क्या बन गया? 1 0. 1 0 इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 2 in binary. So ultimately I am doing 2 minus 2. So 2 minus 2 is 0. So that's why ये आपका क्या है? 0. Okay. But बोरो आपका आना ही है क्योंकि स्मॉलर में से ग्रेटर नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया है. सिमिलरली आप आगे बढ़ सकते हैं. 1 माइनस 0 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 माइनस 0 ये सिंपल है. डिफरेंस इज 1, बोरो इज 0. 1 माइनस 0 माइनस 1, अल्टीमेटली 1 माइनस 1, तो बोथ आर 0. सिमिलरली 1 माइनस 1 माइनस 0 मतलब 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, अगेन 0 0. एंड लास्ट केस इट इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 2, अगेन स्मॉलर माइनस ग्रेटर है तो बोरो तो आएगा ही. ओके, बट 1 माइनस 2 होता नहीं है तो आपने क्या किया? बोरो लिया. बोरो लिया तो क्या बन गया? 1 1 1 1 मतलब ये 3 बन गया, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1. सो दैट्स वाई 1 here. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल फॉर ए फुल सबट्रैक्टर. अब बेस्ट पार्ट ये है कि डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर, इन सबसे सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें केवल मिनटर्म्स चाहिए होती हैं. हमें पूरे डिटेल्ड मिनिमाइज एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती. सो हमें केवल मिनटर्म्स मिल जाएंगे, हमारा काम चल जाएगा. हमें के मैप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो सिंपली राइटिंग द मिनटर्म्स फॉर डिफरेंस. द डिफरेंस फॉर मिनटर्म्स कैन बी रिटन एज दिस one corresponds to 1, this is 2, this is 4 and this is 7. So 1 2 4 and 7. And borrow can be written as 1 2 3 and 7. 1 2 3 and 7. Okay, so let's make the circuit. Now minterms है क्या? ये
कि ये मिनटर्म्स है, मिनटर्म्स मतलब ये एसओपी एक्सप्रेशन है, एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स एवरी मिनटर्म इज ए प्रोडक्ट, और उन सबका क्या काम करना बाकी है, सम करना बाकी है, दैट मीन्स वी हैव टू सिंपली ऐड दोज मिनटर्म्स। सो 1 2 4 7, तो आपने यहां से क्या किया, ये 1 को पिक किया, ये 2 पिक किया, सिमिलरली 4 एंड सिमिलरली दिस 7, और इन चारों को आपने क्या कर दिया, ऐड करने के लिए, सम करने के लिए आपने और गेट लिया, ये आपका और गेट हो गया। सो नाउ दिस गिव्स यू डिफरेंस। ओके, सिमिलरली 1 2 3 7, सो पिकिंग 1 2 3 and 7, so ये आपको दे देगा बोरो, another OR gate. Okay, so this is how we can design any circuit using a decoder, but examiner can confuse us by replacing decoder with a demux, but we can just remember कि डीमल्टीप्लेक्सर के इनपुट को अगर 1 कर दिया जाए तो वो डिकोडर ही बन जाता है। ओके, सो हमें कहा गया था डीमल्टीप्लेक्सर से, बट हमने उस डीमल्टीप्लेक्सर को डिकोडर में कन्वर्ट कर लिया एंड देन प्रोसीडेड इन दिस मैनर। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर। अगेन, तो जो एग्जामिनर कहे सबसे पहले जो समझ में आए आपको वो बना दें, तो इट विल बी गिविंग एन इंडिकेटर एग्जामिनर को कि एटलीस्ट चलो ठीक है मल्टीप्लेक्सर पता है। ओके, सो 8x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है, तो 8x1 मल्टीप्लेक्सर तो बना ही देते हैं। 8x1 दैट मीन्स देयर विल बी 8 इनपुट्स, naming them, numbering them, sorry, 1 0 1 2 3 4 5 6 7, 3 सेलेक्ट लाइन हो जाएंगी आपके पास 8x1 के कोरस्पॉन्डिंग। 3 सेलेक्ट लाइन क्यों? क्योंकि दिस 8 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 3, so 3 select lines and there will be one output y. Now thing is कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें 4 वेरिएबल्स हैं a b c and d, और जिससे बनाना है उसमें हमारे पास 3 ही सेलेक्ट लाइन्स है। दैट मीन्स हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, जो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं किसे करूंगा। ए बी सी या डी किसी में से भी किया जा सकता है, बट इट इज जनरली कन्वीनियंट कि आप एमएसबी या एलएसबी को रिप्लेस कर दें, सो दैट काउंटिंग थोड़ा सा इजीली लिखी जा सके। तो एग्जामिनर अगर मेंशन ना करे तो यू कैन ऑलवेज एलिमिनेट एमएसबी। ऐसा करने से क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। तो ऐसा करेंगे जब भी, तो let's say you take a call that I am not going to use A, I am eliminating A from the circuit and using B, C and D as select lines। तो मैंने पहले कॉल ले ली कि मैं select lines में B, C और D को यूज करने वाला हूं, A को यूज नहीं कर रहा हूं। ओके, सो A यूज नहीं करेंगे तो A की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, B, C, D की वैल्यू 0 0 0 हो सकती है, 0 0 1 हो सकती है, 0 1 0 हो सकती है। जैसे ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करते हैं सारे केसेस लिख रहे हैं हम, तो 0 1 1 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है, 1 1 0 हो सकता है एंड 1 1 1 लास्ट केस। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, बी सी डी की वैल्यू की 8 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, सब हमने ले लिए हैं। नाउ नेमिंग दीज बॉक्सेस, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ए इज योर एमएसबी and D is your LSB. So MSB to LSB की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई यहाँ पे, तो यू कैन सी here that A B C D, ये डायरेक्शन जो है A B C D की डायरेक्शन सेम है। ओके, सो A 0 0 0, B C D 0 0 0, so that means 0 0 0 0, so this can be named as 0, then 0 0 0 1, so 1 0 0 1 0, 2 3 4 5 6 7, similarly 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो इस तरीके से हमने लेआउट प्रिपेयर कर लिया। क्वेश्चन नहीं देखा है हमने, केवल अभी इतना पार्ट देखा है कि 8x1 मल्टीप्लेक्सर से एक ऐसा क्वेश्चन करना है जिसमें 3 सेलेक्ट लाइंस हैं, ऐसा मल्टीप्लेक्सर दिया है और वेरिएबल्स कितने हैं 4। तो कभी भी मैं देखूंगा कि मुझे अगर 4 वेरिएबल को 3 सेलेक्ट लाइन वाले मल्टीप्लेक्सर से करना है तो दैट मीन्स मुझे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, तो उसके लिए मैंने तैयारी की है। अभी क्वेश्चन को तो देखा ही नहीं है,
तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है. So question is 0, 1, 3, 4, 8, 9, 5, 9, 15. So let's place them. 0, 1, 3. So this is 0, this is 1, this is 3. Then 4, 8, 9 and 15. तो ये हमें मिनटर्म्स जो दी थी ये हमने इस लेआउट में प्लेस कर दी. अब सिंपली मल्टीप्लेक्सर के लॉजिक के हिसाब से चलते हैं कि BCD जब 0, 0 होगा, 0, 0, 0, दैट मीन्स फर्स्ट केस होगा, तो कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा? तो ये कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा? I0. दैट मीन्स अगर मैं BCD को 0, 0, 0 रखूंगा तो I0 सेलेक्ट होगा, 0, 0, 1 रखूंगा तो I1, सिमिलरली I2, सिमिलरली I3, I4, I5, I6 एंड I7. अब देख लेते हैं कनेक्शन क्या करना है. तो जब मैं I0 के लिए देख रहा हूं तो I0 के लिए मुझे दोनों 1 दिख रहे हैं, दैट मीन्स A बार और A. तो मैं इसको देखूंगा ध्यान से, तो A बार प्लस A, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1. तो I0 इज इक्वल टू 1, ये मुझे समझ में आ गया. सिमिलरली मैंने I1 में भी देखा, I1 में भी बिल्कुल सेम दिख रहा है, दैट मीन्स I1 भी क्या होगा? ऑल्सो 1. I2 में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक भी 1 नहीं दिख रहा, दैट मीन्स I2 विल बी 0. सिमिलरली I3 में एक 1 दिख रहा है, कोरोस्पोंडिंग टू A इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये किससे कनेक्ट होगा? A बार से. सिमिलरली यहां पर भी एक 1 दिख रहा है, कोरोस्पोंडिंग टू A इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये भी किससे कनेक्ट होगा? A बार से. सिमिलरली यू कैन चेक 5 एंड 6. 5 एंड 6 देख रहे हैं आपकी कोई भी 1 नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स I5 को किससे कनेक्ट करेंगे? 0 से. I6 को भी किससे कनेक्ट करेंगे? 0 से. एंड दिस I7 में एक 1 दिख रहा है, विच इज कोरोस्पोंडिंग टू A इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स I7 को किससे कनेक्ट करेंगे? A से. ठीक है, तो ये आपके पास कनेक्शंस आ गए. इन कनेक्शंस को आप इंप्लीमेंट कर दीजिए इस 8x1 मल्टीप्लेक्सर पे, जो कि बहुत आसानी से किए जा सकते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 0, 1 कौन कौन है. तो मैंने देखा कि ये 3 चीजें 0 हैं. कौन कौन? I2, I5, I6. तो मैंने लिया यहां से I2, I5 और ये I6, तीनों को एक साथ इकट्ठा किया और यहां पे 0 प्रोवाइड कर दिया. ठीक है, फिर मैंने देखा कि 1 कौन कौन है. तो मैंने देखा कि ये दोनों 1 है, I0 एंड I1, तो ये दोनों 1 है. तो ये दोनों को मैंने इकट्ठा किया और यहां क्या प्रोवाइड कर दिया? इन दोनों को 1. अब मैं देखता हूं कि A किसे देना है. A देना है केवल I7 को, तो I7 को A दे दिया. तो I7 को कनेक्ट कर दिया हमने, दिस कंप्लीट थिंग एज A. ठीक है, ये हमने A से कनेक्ट कर दिया. नाउ दिस 3 एंड 4, I3 एंड I4, इन्हें क्या चाहिए? A बार. ओके, तो एक नॉट गेट लिया. 3 और 4 को पहले कनेक्ट कर लेता हूं मैं, क्योंकि दोनों को एक ही चीज चाहिए. और एक नॉट गेट, दैट मीन्स यहां पे क्या बन गया आपके पास? A बार. और ये A बार किस पे चला जाएगा? I3 एंड I4 पर. ओके, तो ये आ गया आपके पास सर्किट रियलाइजेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. सो इस तरीके से हम मल्टीप्लेक्सर पे बेस्ड सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अगली 3rd लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि द पर्पज इज टू गो स्लो. इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ताकि यूटी की प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छे से हो जाए. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेकंड लेक्चर ऑफ द ST2 सॉल्यूशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम ST2 का सेक्शन B को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो आराम से 4 लेक्चर्स के अंदर हम अपने ST2 को पूरा कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच.